Hello guys, welcome to today's session in Concept. Today I'll be talking about the importance of multi-time frame and how you can use it in actual trading. Okay. Now before starting the video, if you are new here, you can go in the description. There is a link below. With the help of that, you can download and install the Concept web application. After successful registration, you will get some free 25 tools that you can use for your trading. Okay, in the application also there is a learn section. So in the video library we have made multiple videos for you based on Pro Plus tools as well as on the strategies, right? And these videos are available in multiple languages like English, Hindi, Gujarati, Marathi and Tamil. So you can set your preference from here as well, right? Now at any point of time, if you guys are having any kinds of doubts or query, so you can contact us. So in the profile section there is support, so you will get our contact number and email ID, so you can contact us and we will be there to sort your queries out, right? Now let's get back to today's session, that is the multi time frame. Okay, now when I talk about the multi time frame, okay, so the traders or the people, they are very confused like which is the best time frame to use, right? So there are many trading styles, for example scalping, then there are day traders, then there are session traders, okay, then there are swing traders. Now everyone should use multi time frame, right? Now मल्टी टाइम फ्रेम में यूज क्या करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, सो आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ स्विंग ट्रेडर, ओके, स्विंग ट्रेडर. नाउ द स्विंग ट्रेडर जो होता है, इट विल होल्ड इट्स ट्रेड फॉर लाइक 5 to 6 days, ओके, और मोर देन दैट ऑल्सो. ठीक है, देन देयर इज अ डे ट्रेडर. Okay, day trader. So the day trader will hold the trade for day, for example 9:15 to 3:30, right? So what he will do, so he will hold the trade for 9:15 to 3:30. Okay, then there are session traders. Okay, so for example the morning session and the noon session, so from 9:15 to you can say 12 p.m. and then from 1 p.m. to 3:30, right? And then there are scalpers. Okay, scalpers who only remains in the trade for 4 to 5 minutes, or you can say 10 minutes, not more than that. Okay, so those are your scalpers, right? Now all of these, their holding period is different, and that is why their time frame for analyzing the chart, the time frame for entering, the time frame from the key levels will also be different. ठीक है, so हम ये analyze करेंगे कि कौन सा time frame आपको choose करना चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद द स्विंग ट्रेडर. ठीक है, कि स्विंग ट्रेडर किस पे जा सकता है, एंड देन वी विल ऑल्सो अप्लाई दैट ऑन द चार्ट एज वेल. ठीक है, सो अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूं, इफ आई एम अ स्विंग ट्रेडर, ठीक है, स्विंग ट्रेडर अगर मैं हूं, सो फॉर अ स्विंग ट्रेडर द होल्डिंग पीरियड शुड बी 5 to 6 days, और उससे ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा. ठीक है, सो इसके लिए देयर आर 3 टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द एनालाइजिंग द मार्केट, ठीक है, फर्स्ट थिंग. देन द सेकेंड थिंग इज द की लेवल्स निकालने के लिए. ठीक है, एंड देन द थर्ड थिंग इज टू एंटर अ ट्रेड. ठीक है, ट्रेड में एंटर करने के लिए. ओके, नाउ टू एनालाइज द चार्ट व्हाट वी विल यूज द टाइम फ्रेम ऑफ वीकली हियर. ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम यू कैन यूज टू मेक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस. ठीक है, टू मेक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, टू मेक सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, right? You can use that to analyze your chart. Okay, now when you want to make the key levels, ठीक है, की लेवल्स, सॉरी माय बैड, जब आप एनालाइज करोगे वीकली टाइम फ्रेम में, सो दिस वीकली टाइम फ्रेम विल बी यूज, ओके, टू मेक द ट्रेंड. ठीक है, कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट. ठीक है, इज द मार्केट इज इन अप ट्रेंड, इज द मार्केट इन डाउन ट्रेंड, और साइडवेज ट्रेंड किस में चल रहा है. तो जस्ट टू मेक श्योर द ट्रेंड, उसके लिए यू विल यूज द कौन सा टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम यू विल यूज. ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम. ठीक है, सिर्फ एनालाइज करने के लिए. सो इफ द ट्रेंड विल बी अप ट्रेंड, देन यू विल गो फॉर द अप ट्रेंड ट्रेड्स. इफ द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, देन यू विल गो फॉर द बेरिश ट्रेड. ठीक है, सिंपल. इसके बाद की लेवल्स बनाने के लिए, इट मींस सपोर्ट, टू मेक द सपोर्ट रेसिस्टेंस. ठीक है, सप्लाई डिमांड जोन. ओके, देन देयर इज योर ट्रेंड लाइन. ओके, देन देयर आर योर वेरियस पैटर्न. ठीक है, जो आपके पैटर्न्स बनते हैं, क्लासिकल पैटर्न्स और हार्मोनिक पैटर्न्स. ठीक है, सो टू मेक दोज पैटर्न्स यू विल यूज द डेली टाइम फ्रेम, राइट? यू यूज द डेली टाइम फ्रेम आप यहां पे बनाओगे. ठीक है, टू मेक योर की लेवल्स. नाउ टू एंटर इन द ट्रेड, जब आपको एक्चुअल में एंट्री लेनी है, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एंट्री, सो इट मींस द प्राइस, कि प्राइस डिसाइड करने के लिए एट विच प्राइस यू विल एंटर, व्हाट विल बी योर स्टॉप लॉस. ठीक है, सो टू मेक दैट यू विल यूज 1 hour टाइम फ्रेम हियर. 1 hour टाइम फ्रेम आप यहां पे यूज करोगे.
राइट. आई होप इट इज क्लियर. सो एनालाइज करने के लिए वीकली, की लेवल्स बनाने के लिए डेली, एंड टू एंटर द ट्रेड यू विल यूज द आर्ली टाइम फ्रेम हियर. नाउ फॉर द डे ट्रेडर, तो जब हम डे ट्रेडर की बात करते हैं, ओके, तो अगेन वी विल बी एनालाइजिंग द चार्ट. Again we will be analyzing the chart, okay, and then we will be making the key levels, and then to enter the trade, right. Now the day trader 9:15 से 3:30 कर रहा है trade, okay. So to analyze the trend of the market, what he will do, he will go with the 1 day time frame के साथ वो जाएगा, okay. So in 1 day time frame he will analyze if the market is in uptrend, down trend में है, ठीक है. ये सारी चीजें वहां से पता चलेंगे टू एनालाइज. नाउ टू मेक द की लेवल्स, अगेन सपोर्ट, रेसिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन्स आपके पैटर्न्स हो गए, तो उसके लिए जो टाइम फ्रेम यूज होगा, ही विल बी यूजिंग 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है. एंड टू एंटर ही कैन यूज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एज वेल एज, अगर 5 मिनट में भी करोगे तो चलेगा, ठीक है. सो दीज आर 2 टाइम फ्रेम्स दैट ही कैन यूज टू एंटर इन अ ट्रेड, ठीक है. स्टॉप लॉस के लिए, अपनी एंट्री प्राइस के लिए ही कैन यूज दिस टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है. तो ये आपका डे ट्रेडर के लिए हो गया. जो सेशन ट्रेडर्स हैं, ठीक है, तो सेशन ट्रेडर्स में मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूं. जो सेशन ट्रेडर्स हैं, ओके, सो वो क्या करेंगे, 2 सेशंस में ट्रेड करेंगे. मॉर्निंग सेशन हो गया आपका, नून सेशन हो गया, ठीक है. सो दे कैन एनालाइज द चार्ट, ठीक है. अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड 1 डे के टाइम फ्रेम में हो गया, ठीक है. की लेवल्स निकालने के लिए अगेन उनका भी क्या हो गया, 1 आवर का टाइम फ्रेम हो गया की लेवल्स के लिए. और व्हेन टू एंटर, सो दे विल ओनली यूज द 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है. वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि द होल्डिंग पीरियड ऑफ जो सेशन ट्रेडर्स होते हैं वो थोड़ा लेस होता है. सो दैट इज वाई, ओके. देन द नेक्स्ट थिंग इज द स्कैल्पर, ओके. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ व्हेन यू आर अ स्कैल्पर, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द एनालाइजिंग कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है. आपको सिर्फ क्या करना होता है, एक छोटे टाइम गैप को देखना होता है कि व्हाट आर योर की लेवल्स फ्रॉम वेयर द मार्केट कैन रिवर्स इटसेल्फ, व्हाट आर द की लेवल्स इफ इट इज ब्रेकिंग, सो यू कैन एंटर इन दैट ट्रेड आल्सो, ठीक है. सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. सो यू कैन मेक योर की लेवल्स किस पे बना सकते हो, यू कैन मेक योर की लेवल्स इन 1 आवर टाइम फ्रेम, ओके, 1 आवर के टाइम फ्रेम में बना सकते हो. एंड देन यू कैन मेक एक और लेवल्स होते हैं, जैसे 1 आवर पे आई एम मेकिंग सप्लाई जोन, डिमांड जोन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब मैं 1 आवर में बना रहा हूँ. इन 15 मिनट टाइम फ्रेम ऑल्सो, ठीक है, आई एम एनालाइजिंग द अदर लेवल्स, ठीक है, कि मेरे कौन से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, तो वो सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह हो गए, ठीक है, आपका ट्रेंड लाइन वगैरह हो गया, ठीक है. तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बना सकता हूँ. सो यू कैन चूज 1 आवर टाइम फ्रेम एज वेल एज 15 मिनट टाइम फ्रेम्स फॉर मेकिंग योर की लेवल्स, राइट. Now to enter in a trade, you can use 1 minute time frame or 3 minute time frame, right. तो 1 minute का time frame will be more suitable, ठीक है. 3 minute का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, but 1 minute time frame will be the one जो आप यूज करोगे to enter in a trade, ठीक है. ये चीज है. Now the holding period will be the 5 minute, 10 minutes, 15 minute के लिए होल्ड करोगे, only then you can exit from your trade, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स. लेट मी शो यू हाउ यू कैन मेक इट, ठीक है. तो एक बार कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन में खोल लेता हूं. इन द एनालाइज सेक्शन आई एम ओपनिंग चार्ट्स, ट्रेड एंड ऑर्डर. राइट नाउ द निफ्टी चार्ट इज, निफ्टी का चार्ट मेरे सामने ओपन हुआ है, ठीक है. तो लेट मी मेक सम लेवल्स, ओके. सो एज द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डे ट्रेडर, ठीक है, आई विल मेक सम changes in the chart, ठीक है. तो what I'll do, I will go with the 1 day time frame. Now in the 1 day time frame I will analyze the trend, ठीक है. So I can clearly see, let me zoom out a chart little bit for you so you can see it clearly, ठीक है. And let me remove this indicators, ठीक है. तो indicators को मैं थोड़ा सा यहाँ से क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है. ओके. Now you can see the chart of Nifty. So as a day trader, 9:15 to 3:30, I am analyzing the chart. So I can clearly analyze from this level कि जहाँ पे मेरा ये level था, okay, just a second. So this was the sideways trend for me. This was the sideways trend for me. एक sideways trend था मेरे लिए, ठीक है. After this range broke, my market went in upward direction, and from then the Nifty is making higher high. Okay, so this is higher high, higher high, higher high. Okay, then it is making lower low, lower low and lower low, ठीक है. higher low, sorry, higher low and higher low. It means clearly
लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, हाई पे हाई बनते जा रहे हैं, इट मींस क्लियरली निफ्टी इज इन अप ट्रेंड. ओके, राइट नाउ माय निफ्टी इज एट अ क्रूशियल स्टेट बिकॉज ये मेरा एक लो है. इफ it will break any time, only then there will be a change of character. It means now market has, nifty has changed its direction, now it is in downtrend, but currently अभी वो break नहीं हुआ है, so it means nifty is currently is in my uptrend में चल रहा है. Right, so this is one of the thing that you can analyze from the chart. So मैंने सिर्फ ट्रेंड को देखने के लिए I have applied the daily time frame. Now to make my key levels, what I will do, I will change into 1 hour time frame. ठीक है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने चेंज कर लिया. नाउ इन 1 आवर टाइम फ्रेम व्हाट आई कैन एनालाइज, द फर्स्ट थिंग इज दैट आई कैन एनालाइज व्हाट आर माय की लेवल्स एंड व्हाट विल बी माय जोन्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस. ये सारी चीजें मैं ऐसे एनालाइज कर सकता हूं. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक सम लेवल्स हियर. आपको दिखाने के लिए कुछ लेवल्स मैं यहाँ पे बना देता हूं. नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट आई कैन क्लियरली सी दिस इज माय जोन. ठीक है, फ्रॉम वेयर माय मार्केट टुक अ रिजेक्शन बिफोर. जस्ट अ सेकेंड. This was the level from where my market took a rejection. Okay, ठीक है. मेरे को कैसे पता? How should I know? Because from this level I can see a good movement started. So this will be my zone, or you can say demand zone from where there will be a buying started in the market. And currently you can see अगर यहाँ से start हुआ तो अगर मैं उसको पहले ही बना लेता, so my market again came to this level and from there was a buying started in the Nifty as well. Nifty में भी कहीं ना कहीं मेरे को उसी level से buying start हुई. Similarly, if I'll make a demand zone in the upper side, okay, so what I'll do again, I can make a range here. ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पे रेंज बना सकता हूं एंड आई कैन सी कि ये वाला पॉइंट है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ये वाला एक पॉइंट है जहां पे मेरे को एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला. जस्ट अ सेकेंड. दिस इज माय रेंज. ठीक है, तो ये यहां से मैं ले रहा हूं एंड आई कैन क्लियरली सी दिस वाज द रेंज फ्रॉम वेयर माई मार्केट टू का रिजेक्शन. यहां पे आया, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, यहां से फिर और अच्छा मूवमेंट स्टार्ट हुआ. देन अगेन इट केम डाउन एंड व्हेन इट वाज ब्रोकन देयर वाज अ गुड देयर वाज अ गुड डाउन ट्रेंड. ठीक है, सो आई कैन एनालाइज करंटली इन 1 आवर टाइम फ्रेम माय मार्केट इज बिटवीन दीज टू रेंज. अगर ये ब्रेक होती है देन देयर विल बी अ बहुत अच्छा बेरिश डायरेक्शन आएगा. इफ इट ब्रोक एट अबव लेवल तो वहां पे आपको एक बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा. राइट, सो मैंने यहाँ पे अपने कुछ जोन्स बनाए हैं. आई कैन ऑल्सो मेक माई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी मैं यहाँ से बना सकता हूँ. ठीक है, सो आई एम चूजिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, एंड आई कैन सी फ्रॉम दिस लेवल देयर वाज अ रेसिस्टेंस इन द मार्केट. ठीक है, तो अगर मैं इसको पहले एनालाइज कर लेता, माय मार्केट टू द रिजेक्शन हियर, इट टुक अ सपोर्ट हियर, अगेन रिजेक्शन एज अ रेसिस्टेंस, अगेन माय मार्केट टुक अ रिजेक्शन हियर एट दिस लेवल एंड देन यू कैन सी करंटली माय मार्केट इज बिटवीन दिस टू लेवल. अगर ये ब्रेक होता है तो मैं अपनी एंट्री बना सकता हूँ यहाँ से ऊपर वाला सप्लाई जोन तक के लिए. ठीक है, नाउ टू टेक द एंट्री आई कैन यूज द 15 मिनट टाइम फ्रेम. ठीक है, सो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम I can use for my entry. So I can clearly see right now my market is between these two levels के बीच में है. At any point of time if it will go there and I'll get a confirmation. ठीक है, कोई भी मेरे को confirmation मिलती है. For example, my market Nifty at any point of time if it will go here and from there I'll get a good rejection candle. ठीक है, जिसका वीक अच्छा है. ओके, और यू कैन से हैंगिंग मैन कैंडल मिल जाती है, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल मिल जाती है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन मेक अ ट्रेड. ओके, आई विल पुट माई स्टॉप लॉस अबव दिस लेवल जो मेरा एसएल हो जाएगा. एंट्री पॉइंट मेरे कैंडल का हाई ब्रेक लो ब्रेक हो जाएगा एंड दिस विल बी माय टारगेट. ठीक है, ये वाला फर्स्ट टारगेट चूज कर सकते हो एंड यू कैन यूज दिस एज योर सेकंड टारगेट. ठीक है, सो आई हैव शोन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे ट्रेडर. सिमिलरली मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिए हैं. इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, यू आर अ स्कैल्पर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द टाइमिंग्स. ठीक है, यू कैन गो एंड एनालाइज योर key levels, you can analyze your entry, your exit, your stop loss by yourself. ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है you can share your views in the comment section as well. ठीक है, तो हम बिल्कुल उसका रिप्लाई करेंगे. Now guys, thank you so much. अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई, you can like it, you can share it with your friends as well. ठीक है, if you are new, you can subscribe the channel also. Thank you so much. This is your trainer Ankit Singh Rawat. Have a good day.